گولڈی میٹ مٹن مسالے، جو آپ کے ہاتھ کا مٹن کھائے زندگی بھر آپ کا ہو جائے۔ جہاں جائے رشتہ بنائے گولڈی مسالے۔ ایکسکیوز می سر، یہ میرا استعفیٰ۔ کیوں؟ سر یہاں کے ٹیوب لائٹ سے میرے کو الرجی ہوتا ہے سر۔ اوکے؟ مجھے یہاں کا واسطو پسند نہیں ہے۔ راکٹ سائنس سیکھنا ہے۔ مجھے بالی ووڈ میں جونیئر آرٹسٹ کا رول ملا ہے سر۔ سو میرا کیا کوئی resignation۔ مذاق ہے کیا؟ ایک سے ایک گھٹیا ریزن دے کے ریزائن کر رہا؟ آپ نے موہت کو HIV کے کارن جاب سے نکالا تھا، وہ نہیں تھا گھٹیا ریزن؟ بھید بھاؤ ان کے ساتھ کیجیے جو HIV پازیٹیو لوگوں کے ساتھ بھید بھاؤ کرتے ہیں۔ موہت، میرا استعفیٰ۔ کیا یہاں کا باس ٹھیک نہیں ہے یار؟ سوری یار، کام کیجیے آپ لوگ۔ HIV ایڈز اپنے پن کو نہیں مار سکتا۔ آداب ناظرین، اردو خبروں کے ساتھ میں محمود احمد حاضر۔ پہلے آج کی سرخیوں پر ایک نظر۔ 2047 تک بھارت کو ترقی یافتہ ملک بنانے کے لیے ہر ایک شخص اپنا کردار ادا کرے، بین عقائد میٹنگ سے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کا خطاب۔ سری نگر میں LG منوج سنہا کی صدارت میں پینشنر سمیلن منعقد۔ LG کے مشیر RR بھٹناگر کی صدارت میں سیکیورٹی ایجنسیوں کی میٹنگ۔ مشرق وسطی کے حالات کے تناظر میں جموں کشمیر کی سلامتی صورتحال کا لیا گیا جائزہ۔ اور سری نگر میں 2 روزہ انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کا آغاز۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ سماج میں امن اور بھائی چارے کو بڑھاوا دینے کے لیے ایک دوسرے کے تئیں رواداری اور احترام کی اہمیت کو سمجھنا انتہائی اہم ہے۔ راشٹرپتی بھون میں منعقدہ بین عقائد میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہر انسان کی زندگی میں مذہب ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، جبکہ مذہبی عقیدہ یا عبادت کسی بھی مشکل حالت میں انسان کے لیے امید اور راحت پیدا کرتے ہیں۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ امن، سچائی اور پیار و محبت جیسے روحانی اقدار کو عمل میں لائے بغیر مذہبی عقیدہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان روحانی اقدار میں ہی بقائے انسانیت کا راز پوشیدہ ہے۔ دروپدی مرمو نے کہا کہ بھارت کو 2047 تک ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کے لیے ملک کے ہر ایک باشندے کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ سری نگر کے کنونشن سینٹر میں آج پینشنر سمیلن کا انعقاد ہوا۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے پینشن حاصل کرنے والے افراد کے ساتھ کئی معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ پینشن حاصل کرنے والے افراد نے کئی معاملات LG کی نوٹس میں لائے اور پینشن کی فراہمی کے عمل میں مزید بہتری لانے کے لیے کچھ تجاویز ان کے سامنے رکھیں۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ بزرگ افراد کا احترام ہمارے سماجی اقدار کا ایک حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیواؤں اور جسمانی طور خاص افراد کے پینشن میں خاطر خواہ اضافہ کیا گیا۔ اس موقع پر 20 مستحق افراد کو آلات سماعت اور ویل چیئر فراہم کیے گئے۔ بادامی باغ سری نگر میں واقع فوج کے 15ویں کور کے ہیڈ کوارٹر پر آج ایک میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں جموں کشمیر کی موجودہ سلامتی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ کی صدارت لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر راجو رائے بھٹناگر نے کی۔ میٹنگ کے دوران مشرق وسطی میں پیدا شدہ صورتحال کے تناظر میں جموں کشمیر کے سیکیورٹی حالات پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ آنے والے سرما کے دوران حد متارکہ اور سرحد پر لیے جانے والے سلامتی اقدامات پر بھی غور و خوض کیا گیا۔ میٹنگ میں فوج کے کئی افسران کے علاوہ شمالی کمان کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل اوپندر دیویدی، مختلف سیکیورٹی ایجنسیوں کے سربراہان اور جموں کشمیر پولیس کے سربراہ دلباغ سنگھ بھی موجود تھے۔ اس دوران مشیر موصوف نے آج انتظامیہ کی اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ کے دوران موسم سرما کے امکانی حالات سے نمٹنے کے لیے کی جا رہی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ برفباری کی صورتحال میں حالات سے نمٹنے کے لیے جدید مشینری اور آلات دستیاب رکھے گئے ہیں۔ RR بھٹناگر نے موسم سرما کے دوران سڑکوں کو قابل آمد رفت بنائے رکھنے اور بجلی و پانی کی بہتر دستیابی کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ انڈین کونسل آف ایگریکلچرل ریسرچ ICAR، سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف ٹیمپریٹ ہارٹیکلچر و زرعی یونیورسٹی کے مشترکہ اہتمام سے آج یونیورسٹی کے شالیمار کیمپس میں ایک میٹنگ منعقد ہوئی، جس کی صدارت زرعی یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی نے کی۔ میٹنگ میں زرعی شعبے کے علاوہ یونیورسٹی کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے امکانات پر غور و خوض کیا گیا۔
जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने आज टंगमर्ग में बाबा क़यामुद्दीन रेशी अलैहि रहमा की ज़ियारतगाह पर हाजिरी दी और वहां आने वाले अक़ीदतमंदों को दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने आस्ताने आलिया के मुतस्सिल तामीर किए गए कम्युनिटी किचन और वॉशरूम ब्लॉक का इफ्तिताह किया। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम ज़ियारतगाहों पर ज़ायरीन के लिए जदीद सहूलियात की दस्तयाबी यकीनी बनाई जा रही है। उन्होंने साबिक हुकूमतों पर गफलत शायरी का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि साबिका दौर हुकूमतों में वक्फ जायदादों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसकी भरपाई के लिए मुनासिब इक़दामात किए जा रहे हैं। कानकनी महकमे की कमिश्नर सेक्रेटरी रश्मि सिंह ने आज कुपवाड़ा का दौरा किया और वहां एक अवामी दरबार में शिरकत करके लोगों को दरपेश मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। अवामी राज इदारों के नुमाइंदों ने लोगों के मुतालबात और उनकी तरक्याती ज़रूरियात मौसूफा की नोटिस में लाईं। पंचायती राज इदारों के नुमाइंदों ने गैर कानूनी कानकनी पर रोक लगाने का मुतालबा किया। रश्मि सिंह ने इस सिलसिले में जरूरी कार्रवाई का यकीन दिलाया। उन्होंने वर्चुअल तरीके पर कई तरक्याती प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह किया। आला तालीम महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार ने आज शोपियां में एक अवामी दरबार की सदारत और लोगों को दरपेश मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। जिले के मुख्तलिफ इलाकों से आए अवामी वफूद ने अपने मुतालबात उनके सामने रखे। आलोक कुमार ने कई मसाइल के हल के लिए मौके पर ही अहकामात जारी किए और लोगों को यकीन दिलाया कि उनके मुश्किलात को हल करने के लिए मुनासिब इक़दामात किए जाएंगे। हफ्तावार ब्लॉक दिवस के सिलसिले में आज कुलगाम में अवामी राब्ता प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। जिला सदर मकाम पर मुनक्किदा इसी तरह के एक कैंप में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन ने लोगों के मसाइल और मुतालबात सुने। इस मौके पर पंचायती राज इदारों के नुमाइंदों ने अवामी अहमियत के तरक्याती मुतालबात जिला हुकाम के सामने रखे। डिप्टी कमिश्नर ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके जायज़ मुतालबात मरहलावार बुनियादों पर हल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ब्लॉक दिवस के इनेकाद का मकसद इंतजामी अमल के लोगों को दहलीज तक पहुंचाना है ताकि आम लोग सरकार की फलाही स्कीमों से इस्तेफादा कर सकें। मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत आज अनंतनाग में कैलाश यात्रा निकाली गई, जिसकी क़यादत जिले के डीडीसी चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ गोरसी और डिप्टी कमिश्नर सईद फखरुद्दीन हामिद ने की। इस मौके पर दीगर जिला अफसरान और तालीमी इदारों के तलबा भी मौजूद थे। श्रीनगर के टैगोर हॉल में आज से 2 रोज़ा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज हुआ। वमेद रंगमंच नामी गैर सरकारी सकाफती ग्रुप के एहतमाम से मुनअक्किद हो रहे इस फिल्म फेस्टिवल का इफ्तिताह आज डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने किया। इस मौके पर बॉलीवुड के मारूफ हिदायतकार बी सुभाष, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सीनियर लीडर संजय सराफ और ज्येष्ठा देवी प्रबंधक कमेटी के सदर भारत भूषण के अलावा जम्मू कश्मीर के कई फिल्मसाज और अदाकार भी मौजूद थे। इस बरस के फिल्म फेस्टिवल को भारतीय फिल्म अदाकार देवानंद के नाम से मंसूब किया गया है। 2 रोज़ा फिल्म फेस्टिवल के दौरान कई भारतीय फिल्मों के अलावा दीगर कई मुल्कों की फिल्मों की नुमाइश भी की जाएगी। कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले पंजाबी अदब के एक मारूफ कलमकार और शायर डॉक्टर जोगिंदर सिंह शान के एजाज में आज टाउन हॉल त्राल में कल्चरल एकेडमी की जानिब से एक निशस्त मुनक्किद हुई। एक मुलाकात उन्वान के तहत मुनक्किदा इस निशस्त में कई मुख्तदर अदीबों के अलावा नव आमोज कलमकारों ने भी शिरकत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि अदीब अपने कलम के जरिए समाज में मुस्बत तब्दीलियों के बाइस बनते हैं। उन्होंने डॉक्टर जोगिंदर सिंह की अदबी खिदमात के लिए उन्हें खराज तहसीन पेश किया। दीगर कई अदीबों और शायरों ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। यह बात काबिल जिक्र है कि डॉक्टर शान ने पंजाबी जुबान में अब तक 15 किताबें तसनीफ की हैं। उधर जबरमन पार्क श्रीनगर में कश्मीर गुलकार सोसाइटी के एहतमाम से सूफियाना मौसीकी पर मबनी एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम के इनेकाद में दीगर कई अंजुमनों के अलावा कल्चरल अकादमी, जम्मू कश्मीर बैंक और महकमे सियाहत ने भी इश्तराक दिया था। कई मारूफ और मुअत्तबर फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा करके हाजिरीन को महसूस किया। सेक्रेटरी सियाहत डॉक्टर सईद आबिद रशीद शाह ने प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उनके अलावा दीगर कई शख्सियात ने कश्मीरी सूफी कल्चर को फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया। कारवानी शोराई उर्दू की जानिब से आज श्रीनगर में कौमी सतह के एक मुशायरे का इनेकाद हुआ। इस महफिल में मकामी शायरों के अलावा बैरून रियासतों से आए कई दीगर शोरा ने शिरकत करके हाजिरीन को अपना कलाम सुनाया। प्रोग्राम के आखिर में साल 2023 के लिए शहजोर कश्मीरी मेमोरियल अवार्ड का भी ऐलान किया गया। यह अवार्ड उर्दू के मारूफ शायर डॉक्टर सईद शबीब रजवी को दिया गया।
सुल्तान अल-अवलिया हजरत शेख सईद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के सिलसिले में अयाम मुतबरका जारी हैं। इस सिलसिले में दरगाह गौसिया खानियार, दरगाह गौसिया सराय बाला, रबाब साहब आली कदल और दीगर बुक्काजात में खतमतुल मौज़मात की मजालिस का एहतिमाम हो रहा है। पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने लोगों को इस सिलसिले में मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि हजरत शेख सईद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात में कामयाबी हासिल करने का दर्स मिलता है। उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि उर्स के सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जाने चाहिए ताकि अकीदतमंदों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इस दौरान बुलंद पाया वली हजरत मीर सईद मोहम्मद हसन सिमनानी अलैहि रहमा के सालाना उर्स के सिलसिले में कल यानी जुमेरात को 2 रोज़ा तकरीबात का आगाज हो रहा है। इस सिलसिले में उनके आस्तान आलिया वाक़या कुलगाम में कल नमाज इशा के बाद शब बेदारी की मजलिस मुनक्किद होगी, जिसमें ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद की शिरकत मुतवक्का है। जिला इंतजामिया ने उर्स के सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल किए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने उर्स सिमनानी के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। अनंतनाग जिले के बिजबिहाड़ा कस्बे में जल शक्ति महकमे का सूबाई दफ्तर कायम किया गया है। इस दफ्तर का इफ्तिताह आज महकमे के चीफ इंजीनियर संजीव मल्होत्रा ने किया। इफ्तिताई रस्म के मौके पर महकमे के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए चीफ इंजीनियर ने कहा कि जल शक्ति महकमा हर कुंबे को नल के जरिए पीने का साफ पानी मुहैया कराने का वादा बंद है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन ने पानी की फराहमी में इनकलाबी नौयत की तब्दीली लाई है। चीफ इंजीनियर ने महकमे के सार्फिन के मसाइल हल करने का भी यकीन दिलाया। कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान माहिर तिब डॉक्टर सईद सज्जाद हुसैन ने अमेरिका के शहर न्यू ऑरलियंस में मुनक्किदा अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन के वर्ल्ड कांग्रेस में एक भारतीय डेलीगेट की हैसियत से शिरकत करके तारीख रकम की है। डॉक्टर सईद सज्जाद हुसैन, जो कि इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी कश्मीर चैप्टर के सरबराह भी हैं, ने इस आलमी कॉन्फ्रेंस में रिप्रोडक्टिव मेडिसिन और IVF के जदीद पहलुओं पर अपने ख्यालात का इजहार किया। यकजहती और भाईचारे को फरोग देने के लिए पुलवामा में आज एक दौड़ का एहतिमाम किया गया। इस दौड़ को जिले के एडिशनल SP ने जिला पुलिस लाइंस में हरी झंडी दिखाई और ये दौड़ टहब चौक में इख्तिताम पजीर हुई। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए एडिशनल SP ने कहा कि हमारा मुल्क भाईचारे और रवादारी की एक बड़ी मिसाल है। उन्होंने कहा कि नौजवान नस्ल में इस जज्बे को उजागर करने के लिए इस किस्म के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते रहेंगे। पुलिस फ्लैग डे की मुनासिबत से गांदरबल में भी रन फॉर यूनिटी का एहतिमाम हुआ। इस दौड़ में जिले के कई नौजवान और तालिब इल्मों ने शिरकत की। यह बात काबिल जिक्र है कि गांदरबल में पुलिस के एहतिमाम से कई खेल मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं। कबायली तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद को उनके हुकूक के बारे में जानकारी देने के लिए कुलगाम में आज एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। ट्राइबल स्टूडेंट्स एसोसिएशन के एहतिमाम से मुनक्किदा इस प्रोग्राम में कबायली तालिब इल्मों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। शिरका को उनके हुकूक के अलावा कबायली तबके के लिए मखसूस सरकारी स्कीमों के बारे में भी बताया गया। CRPF की 43वीं बटालियन के एहतिमाम से चाडोरा के बुचड़ू इलाके में आज एक मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद हुआ, जिसका इफ्तिताह बटालियन के कमांडेंट ने किया। इस कैंप के दौरान आसपास के इलाकों से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 300 मरीजों का इलाज मुआवजा किया गया, जबकि जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ख्वातीन विंग की सदर शमीमा फिरदौस की सदारत में आज श्रीनगर में एक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में कुपवाड़ा के लिए ख्वातीन विंग की वर्किंग कमेटी तश्कील दी गई। बाद में इस वर्किंग कमेटी के मेंबरान ने पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात और अवामी मसाइल के बारे में उन्हें आगाह किया। उमर अब्दुल्ला ने मेंबरान से तलकीन की कि वो लोगों की मुश्किलात हल कराने में उनकी मदद करें। दरियासना पार्टी लीडर पीर आफाक की सदारत में नेशनल कॉन्फ्रेंस के डेलीगेट्स का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें हल्का इंतखाब हजरत बल के लिए कई ओहदों के लिए कारकुनों का इंतखाब अमल में लाया गया। श्रीनगर के शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में आज से CRPF T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हुआ। टूर्नामेंट में श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाली 20 टीमें शिरकत कर रही हैं। टूर्नामेंट के इफ्तिताह के मौके पर CRPF के स्पेशल डायरेक्टर जनरल दिलजीत सिंह चौधरी ने कहा कि टूर्नामेंट के इनेकाद का मकसद नौजवानों को तामीरी सरगर्मियों की जानिब राग़िब करना और उन्हें एक मुनासिब प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। मिस्टर कश्मीर 2023 के इंतखाब के लिए पावर हाउस और WFF के मुश्तरका एहतिमाम से कल टैगोर हॉल श्रीनगर में WFF के पहले शुमारे का एहतिमाम हुआ। मुकाबले में डॉक्टर रफीक ने मिस्टर कश्मीर 2023 का खिताब हासिल किया, जबकि बिलाल राह ने दूसरी पोजीशन हासिल की।
محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک رہنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 3.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی اردو خبر کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.